Hello everyone, my name is Santosh Sani and I'm as the economic student right now from NIMS University Jaipur. Today my topic is monetary policy and fiscal policy. चलो आगे देखते हैं अब। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। A monetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side. Economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objective like inflation, consumption, growth and liquidity. इन्फ्लेशन उसको बोलते जैसे किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस हाइक जब हो जाती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। कंजम्पशन बोलते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन बहुत हाई होता है या कि डिमांड हाई होता है, उसको कंजम्पशन बोलते हैं बाय द कस्टमर एंड कंज्यूमर। ग्रोथ एंड लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और कंजम्पशन जब हाई होंगे तो मार्केट में ग्रोथ एंड लिक्विडिटी, मनी की सप्लाई भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी इकोनॉमी की। नेक्स्ट है इन इंडिया मॉनेटरी policy of the Reserve Bank of India is aimed at managing the quantity of money in order to meet the requirement of different sectors of the economy and to increase the pace of economic growth. With the help of monetary policy, रिजर्व बैंक क्या करती है कि इकोनॉमी को इंक्रीज एंड पीस ऑफ ग्रोथ तक कैसे पहुंचाया जाए, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी की हेल्प बोथ। Objective of goals of monetary policy. The following are the principal objective of monetary policy. जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितने को मिला, कितने को जॉब मिला, कितने अनएम्प्लॉयड है सभी। अगर हाई एम्प्लॉयमेंट है, अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो ऑब्वियस की बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल करके रखती है मॉनेटरी पॉलिसी। थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी करके रखती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब स्टेबल रहता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या इंस्ट्रूमेंट है? Monetary policy is a way of the RBI to control the supply of money in the economy. So this credit policy help control the inflation and in turn help with the economic growth and development of the country. Number one जो open market operations and second bank rate, CRR cash reserve ratio, SLR statutory liquidity ratio, liquidity adjustment facility and moral सिचुएशन। एंड करंट रेट क्या चल रहे हैं अभी? फ्रेंड्स ये तो पुराने हैं, करंट अभी तो मैंने अपडेट करके भी देखा नहीं, बट ये पुराने हैं, ये 1 साल पहले के हैं, आप देख लेना। और आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो ये सब वहां पे मिल जाएंगे करंट। ये फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? Fiscal policy is a part of economic policy of the government which is related to government income and expenditure. फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। देखो अकॉर्डिंग टू आर्थर स्मिथीज, फिजिकल पॉलिसी इज ए पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस desirable effects and desirable effect on the national income and production
Unemployment. Fiscal policy involves designing the tax structure, determining tax revenue, and handling public expenditure. In such a way that the objective of full employment is achieved, fiscal policy deal with the taxation, government expenditure, public debt, deficit financing, and fiscal policy can use to minimize the effect of trade cycle and maintain stable price level. And fiscal policy, budgetary policy, income and expenditure policy, taxation and expenditure policy, all are same. Objective of fiscal policy to increase the employment opportunity in the economy all over India and to control inflation or to reduce price fluctuation. फिजिकल पॉलिसी क्या करती है टू कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को और रिड्यूस करती है प्राइस फ्लक्चुएशन को किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करती है और इन्फ्लेशन बढ़ने से रोकती है और टू रिमूव सेक्टोरल इम्बैलेंस मतलब हर सेक्टर को मतलब एक बैलेंस के साथ में लेके चलती है इम्बैलेंस को रोकती है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को इनइक्वालिटी को रोकती है रिड्यूस करती है टू इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ मतलब इंक्रीज करती है टू इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन सिटीजन ऑल ओवर इंडियन. Thank you so much guys.